Today I will start a new topic of digestive system. So this whole topic will be divided into three parts. In today's lecture, we will study about digestive system. Then we will study about the digestion processes in the next lecture. And in the last lecture, we will study the absorption processes and the basal metabolic rate BMR and energy level mechanism. So पूरा अच्छे से पढ़ना ये system. This is very important unit for your future competitive exams also. So I hope all of you are knowing about digestive, what is the meaning of digestion and what is the meaning of digestive system. So as the fuel is required to any vehicle, in the same way, our body needs the fuel which we call as food. For our body to get energy to perform various processes, we require food. For energy and other processes, metabolic processes, food is required and it needs to be digested completely, digested thoroughly. So you also need to digest this chapter thoroughly so that you can absorb it properly in your mind. So पूरा अच्छे से पढ़ना. So what are these substances that needs to be digested? In food, the substances are biomacromolecules. Macromolecules, these are some large molecules, so they are called macromolecules, and they are present in living organisms, so they are called biomacromolecules. Food is the thing which we get from plants. Plant is also a living organism. There are many sources for food, so one of the source is plant. So these biomacromolecules consist of carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, and some minerals. So from food we get these biomacromolecules. Remember, carbohydrate, proteins, these are generally considered as macromolecule. The macromolecule means those molecules whose molecular weight is above 1000 Dalton. So the macromolecule means those biomolecules whose molecular weight is equal to or greater than 10,000 Dalton or gram per mole. So this 1000 Dalton molecular weight is of carbohydrate. It is having more than 1000 Dalton molecular weight. Protein also has 1000 Dalton minimum molecular weight. But lipids are not having more than 1000 Dalton molecular weight, though it is considered as a macromolecule. The reason behind it is that it is the main constituent of our cell membrane, phospholipid bilayer. For both, for working of mind, for working of brain, and working of our body, we need food. So as such, we cannot utilize carbohydrate and proteins directly. Our cells cannot utilize these molecules directly. It needs to be broken down into simple forms. So however, our body is incapable of using certain biomacromolecules such as carbohydrates and proteins. For that, it should be completely broken down. So for example, there are some carbohydrates which are converted into maltose sugar. There are some proteins, all proteins which are converted to its basic unit, amino acids. But all carbohydrates are not converted to maltose. It depends on which type of carbohydrate it is. Okay, so any carbohydrates, you might be knowing that it is having a long chain. It is polysaccharide molecule, it is a disaccharide molecule, and it can be a monosaccharide molecule. So sugars, especially carbohydrates means sugars. So
big sugar, long chain sugar like glycogen, starch, cellulose, these are need to be converted into its simple form. So the simpler form of some sugar, it can be maltose, disaccharide. This is a disaccharide. You will come to know later about these sugars. So any bigger sugar molecule will be converted to a smaller sugar molecule. And ultimately this maltose will be again broken down to form 2 glucose units. So from starch you get maltose, and when starch is broken down, it gives glucose plus glucose, 2 glucose moiety. So it therefore depends on digestive system to break down and convert these macromolecules into simpler, smaller molecules which can be absorbed by our cells. This is the purpose of digestive system, that it will break down. Break down means the process will be catabolism. If 2 molecules are joined together, then it will be considered as anabolism. Here the processes will be catabolism. So these molecules are need to be broken down, catabolism will occur, and then it will be converted to small, simple, absorbable molecules. Now, our digestive system comprises alimentary canal. Okay, please note this spelling. Don't write this spelling. This is also considered as alimentary. This is chemistry, alimentary. This is not the spelling of alimentary canal. Always write this spelling. The alimentary canal, which is also called GIT, gastrointestinal tract. Okay, so this alimentary canal begins from mouth and ends to anus. And the second thing which is comprising digestive system, that is digestive glands, or else we can call it as accessory glands. I'm sorry, accessory glands. They are not present in the path of the digestive system, that is the GIT. They are present besides the digestive tract. So that's why these glands are considered as accessory glands. They secrete some juice. So mainly digestive system comprises of GIT, that is gastrointestinal tract or alimentary canal. Here we will write the short form AC for alimentary canal, and it will be consisting of digestive gland. Now this is the whole pathway, or you can say the digestive system. It begins from mouth, then pharynx will be there, and then esophagus, this whole structure. Then esophagus will lead to stomach, then stomach will lead to small intestine, which is very large. It is 6 to 8 meter approximately, 6 to 8 meter. Okay, it is highly coiled structure. That's why we cannot imagine that it will be this much big, but it is 6 to 8 meter long. Then large intestine, which is shorter than small intestine. Here small and large, the word small and large means the diameter of the intestine. The diameter of small intestine is lesser compared to large intestine. That's why that intestine is called small intestine. The diameter of large intestine is bigger compared to small intestine. That's why it is called large intestine. But remember, longer will be small intestine. Small intestine is longer than large intestine. And large intestine will lead to rectum and anus. From anus, the food will be expelled or egested out.
So the alimentary canal along the pathway through which food enters the body. Solid waste are ingested includes organs such as mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Okay, so these 8 structures you need to remember in sequence. Let us see what is inside the mouth. So if you observe the structure of any alimentary canal, here we are dealing with human. So human alimentary canal, we will see that the mouth, the anterior opening of alimentary canal leads to the oral cavity. It is also called buccal cavity. The shape of that cavity is like buccal, so it is called buccal cavity. So buccal cavity के अंदर क्या होता है? Teeth and tongue. So teeth, how many teeth are there in adult? 32. Okay, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको याद करना है. Teeth and tongue. ये वाला जो पार्ट है, मसल है टंग का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक दिस. ओके, ये जो पार्ट है, ये टंग का नीचे का पार्ट जो पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम. फ्रेन्यूलम. ओके, FRENULUM, फ्रेन्यूलम. आगे आएगा अभी. So each tooth in a cavity is embedded in a socket of jaw bone. jaw bone करके सॉकेट बनाता है. जैसे हम घर पे सॉकेट में क्या लगाते हैं? प्लग. वी आर प्लगिंग इनटू सम सॉकेट. चार्जर है कुछ भी, तो वैसे ये टीथ है वो सॉकेट में पूरे वहां पे पाए जाते हैं, सॉकेट में. तो ऐसे अरेंजमेंट को, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट. दिस इज कॉल्ड थिकोडोंट अरेंजमेंट. Each tooth in a cavity is embedded in a socket of jawbone, forming a type of attachment known as thicodontous. ऊपर जो के अंदर ये सॉकेट होते हैं, ये जो सॉकेट है उसके अंदर टीथ एम्बेडेड है. Here you can see the teeth are embedded. यहाँ पे भी ये पूरा एक दांत है ये. This is the socket in which tooth is embedded. टूथ के ऊपर का जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. हमारे पूरे बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक. दांत तो गिर सकता है, पर दांत का ये जो भाग है, ये जो पार्ट है, इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. दिस इज कॉल्ड इनेमल. तो द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टूथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ food. So this is called enamel. Okay, कौन से केमिकल से बनता है ये भी आप याद रखना. दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ट्वाइस. ये इसका फॉर्मूला है. इसमें जो केमिकल होता है उसका ये फ्लोरिनेटेड होता है. This enamel is made up of this substance. This is called calcium phosphate. Calcium phosphate. Okay, याद रखना. Fluorinated. Ca3PO4 twice dot F. Okay, fluorine भी इसमें होता है. Fluorine is one of the most important element for tooth enamel. Okay, तो ये enamel जो है वो calcium phosphate fluorinated से बना हुआ होता है. बाकी के जो बोन है हमारे बॉडी में वो सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं. सो बोन और टीथ के लिए कैल्शियम भी जरूरी है, फॉस्फोरस भी जरूरी है, और स्पेशली फॉर टूथ फ्लोरीन भी जरूरी है. नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्टिंगली ह्यूमन बींग्स डेवलप
two sets of teeth. Okay, singular tooth, plural teeth. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड हैंस आर नोन एज डाइफाइडोन. हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं. जब हम छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तब ये ऐसे दांत होते हैं, इतने ही. और जब हम 20 tooths will be there, 20, and in adults teeth the tooth number will be 32. Okay, so adult teeth will be comprising of 32 teeth. Infant baby teeth will be 20 teeth. Milky teeth बोलते हैं हम उसको, milk teeth. ये 32 teeth. We will deal with this part. So 8 इधर, फिर 8 ऐसे, 8 here, और and 8 teeth will be this type. So 8 4 जा 32. So ऐसे 8 टाइप के 8 अलग अलग रीजन है, वैसे हम बोल सकते हैं. वो मिला के 32 दांत बनाते हैं. Okay, let us see how this is formed. So this is called diaphyodont. This arrangement, human develop 2 sets of teeth during the lifetime, and this type of phenomenon is called, or this type of tooth are called diaphyodont. Okay, तो परमानेंट टीथ जो एडल्ट में हम हमारे जो टीथ है वो परमानेंट टीथ होते हैं, वो गिरेंगे तो वापस नहीं आएंगे. So permanent teeth in adults are 4 types: incisors, canine, premolars and molars. तो क्या है ये देखो, ये जो 4 है ऊपर के, इसको बोलते हैं incisors. These are incisors. फिर बाजू में जो दांत है ये वाले एकदम शार्प होते हैं. दिस वन canine. ओके, लास्ट में जो एकदम अंदर के साइड पे होते हैं, उस टीथ को हम बोलते हैं मोलार्स. सो इंसिजर्स, कैनाइन, ऊपर का स्ट्रक्चर आपको लगेगा ये थोड़ा ब्लंट एंड वाला है, ये पूरा एकदम शार्प एंड वाला है. कैनाइन्स जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके कैनाइन्स बहुत बड़े होते हैं. देन प्रीमोलार्स और मोलार्स. So this arrangement is like this. So incisors, then यहाँ पे canines, एक canine, एक 8 के ये पार्ट में 2 incisors, एक canine, 2 premolar और 3 molar है. तो अगर हम ये 8 वाला पार्ट ले ले, 8 के सेट का पार्ट, दिस सेट, so the dental formula for adult teeth will be 2 1 2 3. ओके, 2 इंसिजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार एक पार्ट में. वैसे ही नीचे ऐसा 8 में ऐसा है अरेंजमेंट, तो यहाँ पे भी वैसा होगा, यहाँ पे भी वैसा ही होगा और यहाँ पे भी वैसा ही होगा. सो 2 1 2 3 ऊपर भी वैसा, इधर भी, नीचे भी वैसा ही अरेंजमेंट है. 2 1 2 3 अबव एंड 2 1 2 3 इन द लोअर जो, और दोनों बाजू है. So we have to multiply it by 2 and this total will become 32. So the dental formula for human teeth will be 2 1 2 3 upon 2 1 2 3 into 2. Okay? कुछ बुक्स में 2 1 2 3 upon 2 1 2 3 भी लिखा हुआ होता है, ये भी सही है. into 2 करोगे तो पूरा सेट बन जाएगा. Then we will see about tongue, the second member of the oral cavity. तो बकल कैविटी के अंदर दूसरा जो मेंबर है दांत के पीछे, वो है टंग. इट इज अ फ्री मोबाइल मस्कुलर अटैचमेंट टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी. ओके, पूरा मस्कुलर है, कोई भी बोन नहीं होता टंग में. बट सेंस ऑर्गन्स बहुत सारे, सेंसरी नर्व्स बहुत सारे होते हैं. ओरल कैविटी के अंदर दूसरा जो पार्ट है वो है टंग, और ये जो बोन है लंबा वाला नीचे डोर्सल पार्ट में, टंग के डोर्सल पार्ट में जो बोन है ये जो अटैच करता है बकल कैविटी में. तो टंग को बकल कैविटी में यहाँ पे अटैच करता है. दिस इज कॉल्ड फ्रेनुलम.
Okay, you need to remember this part. So through frenulum, tongue will be attached to the oral cavity. Okay, and then if we see the upper surface of the tongue, तो अपर सरफेस में टंग के ऊपर बहुत सारे ऐसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं. देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, हियर यू कैन सी द लेटरल व्यू ऑफ द टंग. अगर हम लेटरल व्यू देखें टंग का तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. तो दिस पार्ट, ये जो बड़े बड़े ये वाला है, इसको बोलते हैं पेपिले और पेपाइले. ओके, सिंगल को बोलते हैं पेपिला, प्लूरल में पेपिले. दिस पार्ट इज कॉल्ड पेपिले. और ये जो ऊपर है, इसके अंदर जो है ये वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स. ओके, ये पेपिले, ये सिर्फ ये सब पेपिले में ही गिना जाता है. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड पेपिले. और पेपिले के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, दिस विल बी टेस्ट बर्ड्स. So the upper surface of tongue is covered with papillae, smaller projections which are arranged in a row, some of which have taste buds. Okay, like this. ये पूरा human physiology में image के बिना आप लोग समझ नहीं सकते. That's why I have kept many images. I hope it is clear to you. टंग में पेपिले क्या है और टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे होते हैं. Now, let us move inside. Pharynx पे आते हैं. Food from the oral cavity enters the pharynx. So this is a passageway. है वो junction है air and food का. So pharynx opens into the windpipe, trachea and esophagus. Digestive system में अगर आगे बढ़ना है तो esophagus आएगा. Respiratory system में आगे जाना है तो windpipe या trachea होगा. तो ये pharynx एक junction है. वहां से तय करेगा फूड की अब कहाँ किधर जाना है. जैसे ये रेलवे का जंक्शन होता है, एक जगह पे ट्रेन मिलती है, फिर एक ट्रेन इधर जाती है, एक ट्रेन उधर जाती है. वैसे ही जब एयर आएगा तो एयर को विंड पाइप ट्रेकिया में भेजना होता है. और अगर फूड आता है तो फूड फेरिंग्स से जाएगा इसोफेगस में. तो इसोफेगस इज अ नैरो ट्यूबुलर मस्कुलर ऑर्गन. देखो यहाँ पे फेरिंग्स. जो फूड आएगा तो भी फेरिंग्स में जाएगा. एयर अगर इनहेल करेंगे कोई तो ये भी फेरिंग्स में आएगा. और फेरिंग्स से आगे फूड को भेजा जाता है इसोफेगस में बाय स्वेलोइंग. ओके, हम धक्का नहीं देते पर वो स्वेलो करते तो अंदर अपने आप चला जाता है. सो फ्रॉम फेरिंग्स इट विल एंटर इनटू इसोफेगस. अब इसोफेगस में जाने के टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल एक पार्ट होता है यहाँ पे. ये जो है ये मसल एपिग्लोटिस, कार्टिलेज होता है ये. So this epiglottis will take care that food does not enter into the windpipe. Okay, so it is very necessary that food must not enter into the windpipe. If it enters, then it will cause coughing or any disturbance in the respiratory system. इसलिए कहा जाता है कि जब खाते हो तब बोला नहीं जाता. अगर बोलते हो तो एपिग्लोटिस में डिस्टर्बेंस आता है तो फूड यहाँ जाने के बदले यहाँ पे चला जाता है. सो इसोफेगस में फूड जाएगा और इसोफेगस के आगे फिर स्टमक आएगा. सो व्हेन फूड थ्रू द फेरिंग्स अप्रोचेस esophageal entrance, a flap of elastic cartilage tissue which is called epiglottis. रिफ्लेक्सिवली जैसे ही वहां पे फूड टच होगा वो पूरा तुरंत बंद हो जाएगा और फूड को एक्सपेल करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कि आपका रास्ता उधर है भाई, इधर नहीं आना है. thereby preventing the food from entering the windpipe. Okay, तो ये सब organs आपको याद करने. This is very important. Epiglottis will not allow the food to enter into the respiratory system. देखो इधर फूड है, इसोफेगस में आया, अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा और एकदम रिदमिकली थोड़ा रुकेगा फिर नीचे जाएगा, रुकेगा नीचे जाएगा. तो वैसे पूरा फूड जो है वो इसोफेगस में आगे बढ़ेगा लाइक दिस. Okay, this movement is called peristalsis. याद रखना, rhythmic contraction and relaxation of the esophageal muscles to propel food forward in the alimentary canal. This is called peristalsis.
or it is called peristaltic movement. Peristalsis, Stalsis, peristalsis, or it is called peristaltic movement, rhythmic contraction and relaxation in the esophageal muscles. ओके, इन द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो आगे भी वो पेरिस्टालसिस परफॉर्म करेगा. तो ऐसे फूड नीचे जाएगा, सीधा डायरेक्टली स्टमक में जंप नहीं करेगा. नाउ एट द एंड ऑफ द इसोफेगस देयर इज सम मसल. यहाँ पे कुछ गार्ड मसल्स होते हैं जो गार्ड करते हैं एंट्री, फूड की एंट्री एग्जिट जो है वो पूरा ध्यान रखते हैं. तो जब भी इसोफेगस से फूड स्टमक में एंटर करेगा तब यहाँ पे एक मसल है ये वाला. एलिमेंट्री कैनाल में जब ओपनिंग्स, जहां पे भी ओपनिंग्स होगा उस ओपनिंग्स के अंदर ऐसे स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं. जब फूड आता है तब वो रिलैक्स करेंगे, मतलब जगह देंगे फूड को, और वो फूड अंदर स्टमक में एंटर करेगा. अगर फूड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और फूड अंदर आ गया एक बार स्टमक में तो वापस ऊपर ना जा पाए, इसलिए वो ऐसे ऐसे उसके शेप्स, उसके जो शेप है वो ऐसा होता है ताकि फूड वापस ऊपर इसोफेगस में ना चला जाए, वाल्व जैसा. तो दिस टाइप ऑफ मसल्स आर कॉल्ड स्फिंक्टर मसल्स. और यहाँ पे वो स्टमक और इसोफेगस के बीच में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल sphincter muscle. So this will provide the one-way valve that allows food to enter the stomach but prevents it from regurgitating. अगर किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसा कुछ हो रहा है तो फूड जो है वो वापस ऊपर जाएगा, स्टमक से ऊपर कभी कभी जाता है और वो इसोफेगस थ्रू माउथ से बाहर निकलता है. तो ऐसे डिस्टर्बेंस कुछ आते हैं तो उसको बोलते हैं रिगरगेशन. रिगरगेटिंग नहीं होने देगा, ये प्रिवेंट करेगा. चलो स्टमक में आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हमने पूरा जर्नी स्टार्ट कर दिया फूड का. हम इसोफेगस पे थे, अभी हम मान लो कि हम फूड है, हम पहुंचे स्टमक में. स्टमक के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट जंक्शन ऑफ आवर विल बी, नेक्स्ट स्टॉप विल बी स्टमक. तो व्हाट इज स्टमक? स्टमक क्या है? जे शेप्ड एक बैग है, जे शेप्ड सेक. ओके, इट इज अ जे शेप्ड सेक विच इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट. कहां पे लोकेशन? upper left part of the abdominal cavity. Okay, our body is divided into 3 regions. याद रखना है, ह्यूमन बॉडी 3 हिस्सों में पूरा डिवाइड है. क्या कौन से? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. ओके, हमारा हेड का पार्ट, फिर गले के नीचे का जो चेस्ट तक का पार्ट है उसको बोलते हैं थोरेक्स, और चेस्ट के नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं एब्डोमेन. सो एब्डोमिनल पार्ट में स्टमक पाए जाते हैं. एक स्टमक होता है, पाया जाता है, सॉरी. So abdominal cavity between the esophagus and the first part of the small intestine. तो स्टमक का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इसोफेगस के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, और इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम, उसके ऊपर. ओके, सो इट इज लोकेटेड between the esophagus and the first part of the small intestine, that is duodenum. ओके, अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक के अंदर एक जूस बनता है, गैस्ट्रिक एसिड. गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं उसको. सो गैस्ट्रिक एसिड विल बी secreted inside the stomach and it will be digesting the food we eat. ओके, ज्यादातर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. गैस्ट्रिक जूस विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स. ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स विल बी डाइजेस्टेड बाय गैस्ट्रिक जूस. तो स्टमक इज मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट्स. ओके, दिस गैस्ट्रिक जूस will be digesting majorly proteins. ये भी याद रखना, प्रोटीन डाइजेशन के लिए स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. स्टमक इज मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट्स. अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे. देखो, अब ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस या फंडिक रीजन. फिर बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं कार्डिक रीजन. आई एम डिनोटिंग दिस एज एफ, भी आपको अभी दिखाऊंगा मैं. और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरस, लाइक दिस. दिस इज फंडस, दिस इज कार्डियक पोर्शन, and this one is called
पाइलोरिक पोर्शन। स्टमक के 3 अलग अलग रीजन है। ओके, पाइलोरिक विल बी नियर टू डियोडिनम, दैट मीन्स इट विल बी नियर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फंडस विल बी नियर टू द इसोफेगस, एंड बीच का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं कार्डियक पोर्शन। चलिए आगे बढ़ते। अब पाइलोरस के आगे देखो, यहां पे भी वापस ओपनिंग आ गई, तो दूसरे पार्ट में अब फूड एंटर करने के लिए। जब फूड, ये जो फूड है, अब देखो, जब खाना हम जो खाते हैं फूड, वो माउथ में थोड़ा डाइजेस्ट होगा। वो कहाँ 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 क्या क्या डाइजेस्ट होगा, उन डाइजेशन में पढ़ेंगे, फिर आपको पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ। सो जब भी माउथ में फूड आएगा तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अमाइलेज सिक्रेट करेगी, और अमाइलेज, उसको टाइलिन भी बोलते हैं, जो अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगी। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो माउथ में पूरा हो जाएगा, और माउथ के अंदर जो फूड होगा उसको बोलेंगे बोलस। ओके, डाइजेशन में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा समझ लो ओवरव्यू उसका। माउथ में जो फूड होगा उसको नाम दिया जाता है बोलस। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट वहां पे हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एमाइलेज विच इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। अब बोलस जो है वो नीचे जाएगा, और स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होगा तो स्टमक के अंदर इस फूड को बोलेंगे काइम। तो फूड के अलग अलग ये नाम दिए गए। अब इस फूड को बोला जाता है काइम। ओके, तो दिस पार्ट, दिस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे काइम। ओके, अब फिलहाल इतना याद रखो, माउथ में जो फूड बना डाइजेस्ट होके उसको बोलते हैं बोलस। माउथ के बाद जो इसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक में जो फूड बना उसको बोलते हैं काइम। अब ये जो काइम है जब इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इंटेस्टाइन में जाने से पहले वहां पे एक रेगुलेटिंग मसल होंगे, ओके, वाल्व की तरह। ये मसल इसको एक्सपेल करेंगे, यहाँ पे भी पेरिस्टालसिस मोशन होगा, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे एक्सपेल होगा। सो दिस मसल विल बी कंसिडर्ड, विल बी कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये पाइलोरस से नजदीक है। क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन के बाद जो फूड बना, काइम बना, वो काइम जो है वो जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने से पहले वहां पे एक रेगुलेटिंग मसल होता है जो पाइलोरस से नजदीक होता है, पाइलोरस पार्ट से नजदीक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, एंड दिस फूड वाज हाईली चॉन्ड, पूरा जैसे वो आटे का वो होता है ना घंटी, वैसे तो पूरा स्टमक में चॉन्ड किया जाता है। So it will regulate the flow of the churned food from the stomach into the duodenum, the first part of the small intestine. So अगर एक बार ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, स्टमक से इंटेस्टाइन में चला गया, तो वापस आने की उसकी जो संभावना है बहुत रेयर होती है, अनटिल एंड अनलेस ये स्फिंक्टर अच्छे से काम नहीं करता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन को कई बार बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, G for gastrointestinal reflux। ओके, अगर कोई फूड अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, रिफ्लक्स बोलते हैं। कई बार रिफ्लक्स लिखा जाता है रिफ्लक्स, फ्लक्स मतलब एक इंटेंसिटी। तो स्टमक से भी फूड वापस आ सकता है, इसोफेगस से, माउथ से बाहर, उल्टी होती है, वॉमिटिंग, और इट कैन ऑल्सो बी रिगरगेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द स्टमक। रेयर केस में होता है अगर स्फिंक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो। चलो, तो डिओडेनम इज फॉलोड बाय जेजुनम। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे स्टमक से नजदीक का जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं डिओडिनम। ओके, फिर उसके बाद है जेजुनम और इलियम। ओके, लाइक दिस, डिओडिनम, फिर जेजुनम, फिर जो पार्ट है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम। Okay, so while the duodenum is the short U-shaped portion, this is the short part of small intestine and it is U-shaped.
ओके, स्टमक वॉज जे शेप्ड, डियोडेनम इज यू शेप्ड। देखो डियोडेनम में तो यू आता है उसके स्पेलिंग में, तो याद रखना डियोडेनम यू शेप्ड, स्टमक में जे नहीं आता, जेजुनम में जे आता है, पर स्टमक का शेप जे शेप्ड है। जेजुनम इज द लॉन्ग coiled portion. Okay, this will be highly coiled portion of small intestine is jejunum. And last part of small intestine is ileum. Okay, and this is highly coiled part. This is the highly coiled part of small intestine that opens into the large intestine. Okay, याद रखना डियोडिनम शॉर्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम लॉन्ग पोर्शन है, और इलियम जो है वो शॉर्ट होता है पर हाईली कोल्ड होता है। जेजुनम से शॉर्ट पोर्शन होता है बट इट इज हाईली कोल्ड पार्ट। ओके, आर यू गेटिंग दिस? वॉल दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों मिलके पूरा एक स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं जो 6 से 8 मीटर का होता है। इतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इट इज 20 फीट। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करते हैं हम। देखो इसमें भी 3 पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, इसको लार्ज क्यों बोलते हो, स्मॉल को स्मॉल क्यों बोलते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ देयर डायमीटर। डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल से कम होता है, इसीलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा है और स्मॉल का स्मॉल रखा है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, 3 रीजन्स। ओके, here you can see that this is cecum, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला कॉलन, ये पूरा का पूरा पार्ट है उसको कॉलन बोलते हैं। फिर यहाँ पे रेक्टम, ये 3 पार्ट। ओके, हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, ई कोलाई, इश्रीशिया कोली, इश्रीशिया कोलाई। ओके, कोलाई कोली जो भी बोलना है, विराट कोहली, ई कोली। तो ये कहाँ पे होता है, स्मॉल में होता है या लार्ज में होता है? साइटोप्लाज्मिन के एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। ओके, फिर तो ये जो पोर्शन है अच्छे से पढ़ लो आप। देखो ये सीकम, दिस पार्ट इज कॉल्ड सीकम, फिर ये कॉलन, और एंड का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ये वाला, ये रेक्टम, और नीचे आउटलेट होगा द एंड पार्ट ऑफ इट विल बी एनस। दिस इज द एंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एनस, बट इट इज नॉट द एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब कॉलन के 3 रीजन है। जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं एसेंडिंग कॉलन, जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, और जो नीचे है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन, लाइक दिस। Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microbes. Is not as developed in humans as in ruminants. Ruminants, cattle, ये सब एनिमल्स होते हैं उसके अंदर ये डेवलप होता है ये पार्ट। कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं और सेलुलोज डाइजेशन के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन के लिए रुमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है, डेवलप्ड होता है। ह्यूमन के अंदर इतना डेवलप नहीं होता। Moreover, in humans, it gives rise to a narrow finger-like projection, which is called vermiform appendix, which is non-functional, or we can call it as vestigial. ये देखो ये सीकम और ये हुआ appendix. Okay, its major function is still not known, so it is considered as functionless or vestigial organ. सीकम जो है वो कॉलन में आगे बढ़ता है, एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। ओके, फिगर में देखिए आप, एसेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, और ये हुआ डिसेंडिंग कॉलन। ओके, डिसेंडिंग कॉलन। So descending part of the colon leads to the rectum. Rectum is a bag-like structure which stores undigested food in the form of fecal matter until, अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वहां पे रहेगा, और उसके बाद एनस से उसका डाइजेशन हो जाएगा। हाँ, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स की बात कर रहे थे ना, तो ये इकोलाई भी एक सिम्बायोटिक माइक्रोब्स है। फिर एक प्रोपियोनी बैक्टीरिया होता है, वो भी एक सिम्बायोटिक माइक्रोब्स है। तो ये सब
एब्जॉर्प्शन के लिए हमको हेल्प करते हैं। इकोलाई है, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया है, ये सब बैक्टीरिया जो है वो सीकम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वो एब्जॉर्प्शन में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, वहां एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेंगे। चलो, रेक्टम लीड्स टू द लास्ट मेंबर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एनस। Okay, this is the last part of alimentary canal, remember, but not the last part of large intestine. Rectum anus is the last part of alimentary canal. वहां पे एक ही काम होगा, क्या होगा? इजेशन। जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। ओके, अब देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल है वो किससे बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so the wall of the anus as well as the other organs of the alimentary canal is made up of 4 layers of tissue. पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है वो इस टिश्यू से बना है। देखो, सबसे अंदर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं सीरोसा, उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं मस्कुलरिस, उसके ऊपर है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर का पार्ट, अंदर मतलब कि अगर हम पूरा पाइप ले तो पाइप के अंदर का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन से बाजू में, ल्यूमेन के बाजू में जो खोखला पार्ट है, होलो पार्ट है, उसके जो नजदीक पार्ट होगा उसको बोलेंगे म्यूकोसा। ओके, तो अगर हम इंटेस्टाइन को ऐसे यहाँ पे रखें तो यहाँ पे एकदम ये जो पोर्शन होगा, जो ये होलो पार्ट से टच होगा, ये वाला, ये होगा म्यूकोसा। सबसे अंदर का, अंदर ऐसे अंदर का, like this, the inner part which is not having any contact to the lumen part, this empty portion, वो होगा सीरोसा। ओके, ऐसे। ओके, सीरोसा क्या है? सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम अलोंग विद सम कनेक्टिव टिश्यू। वैसे आउटर मोस्ट बोला जाता है, पर अगर हम देखें तो ये जो लेयर पूरे यहाँ से देखें, अंदर से होलो पार्ट से देखें तो ये एकदम इनर पोर्शन होगा, और अगर हम डायसेक्शन में देखें तो वो गिना जाएगा आउटर मोस्ट पार्ट। सो आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम सेल्स, दीज आर मेसोथेलियम सेल्स, along with some connective tissue, या कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे। It is followed by muscularis, muscle layer made up of a circular inner layer and longitudinal of smooth muscle cells. मस्कुलरिस जो है वो मसल लेयर है, वो सर्कुलर इनर लेयर है, और लॉन्जिट्यूडनल आउटर लेयर है, वो स्मूथ मसल सेल से बना हुआ है। ओके, मस्कुलरिस के 2 लेयर, मसल लेयर इज मेड अप ऑफ सर्कुलर इनर लेयर, और लॉन्जिट्यूडनल आउटर लेयर जो है वो स्मूथ मसल सेल से बना हुआ है। Okay, adjoining the muscularis is the submucosa, which is soft connective tissue layer containing blood vessel and nerve endings and lymphatic vessels. यहाँ पे इस फिगर में देखिए, आप देखो, ये हो गया ल्यूमेन, ये ल्यूमेन हुआ होलो पार्ट। अब ये टिश्यू लेयर, इसके अंदर कुछ सेल्स, कुछ लेयर ऐसे है जो ऐसे लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड है, कुछ सेल्स ऐसे हैफेसेड मैनर में रैंडमली पोर्शन में अरेंज होते हैं। ओके, तो ये म्यूकोसा जो लेयर है उसके अंदर ये देखो, ये पूरा म्यूकोसा लेयर है, इसके नीचे ये सब म्यूकोसा, ये वाला पोर्शन पूरा। ओके, ये है मस्कुलरिस और ये वाला सीरोसा, ये मस्कुलरिस। ओके, तो वापस एक बार देखते हैं। देखो, सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम सेल्स, लाइक दिस, यहाँ पे ये थिन मेसोथेलियम सेल्स से बने हुए थे, along with some connective tissue। फिर मस्कुलरिस जो लेयर है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो बना हुआ होता है मसल लेयर, उसके अंदर कुछ सर्कुलर इनर लेयर होते हैं और कुछ लॉन्जिट्यूडनल आउटर लेयर होते हैं। आया समझ में? इसका हिस्टोलॉजी में बाद में दिखाऊंगा डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। फिलहाल इतना याद रखो कि सर्कुलर इनर लेयर
एंड लॉन्जिट्यूडिनल आउटर लेयर। और कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पे? स्मूथ मसल सेल्स, जो हमने किडनी में भी देखे थे आर्टेरियोल के अंदर। एडजॉइनिंग दिस मस्कुलरिस इज अ सब म्यूकोसा, ये वाला, which is a soft connective tissue, and it will have, यहाँ पे क्या होगा? blood vessels, arteries, veins, capillaries, okay, और nerve endings। और अगर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए वहां पे होगा लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ। इस लेयर के अंदर, ओके। अभी आगे आपको पता लग जाएगा। देखो, डिओडिनम के अंदर, इन द डिओडिनम देयर आर सम ग्लैंड्स which are present in the submucosa. Finally, the mucosa innermost layer of the alimentary canal lines the lumen of the alimentary canal. अब देखो, ये जो ग्लैंड्स है इसमें कुछ जूस सिक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को हम बोलते हैं सकस एंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करने के लिए कुछ ग्लैंड्स होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। Succus entericus. This is the name of intestinal juice. ये जो ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वो ये जूस प्रोड्यूस करेगी। कौन से पोर्शन में ग्लैंड्स प्रोड्यूस होती है? डिओडिनम में, ओके। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम इन विच इज गॉबलेट सेल्स। अब देखो गॉबलेट सेल के बारे में यहाँ पे, ये देखो, ये पूरा ये वाला कौन सा लेयर है? ये म्यूकोसा, ओके। म्यूकोसा के अंदर ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले से, ये सब ऐसे होते हैं। ये वाला ग्लास देखा है कहीं पे? कोई विस्की या सोडा कि ऐसा कई बार कोई ग्लास यूज करता है, तो इस ग्लास को वैसे गोबलेट बोला जाता है। इस ग्लास इज कॉल्ड गोबलेट। और ऐसा ही शेप यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उसके ऐसे ही शेप, ऐसा ही शेप होता है उसका, ऐसा, लाइक दिस। अंदर के साइड पे नैरो होता है, बाहर के साइड पे ब्रॉड होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड गोबलेट सेल्स, ओके। तो ये जो म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड गोबलेट सेल्स। इन द स्टमक म्यूकोसा फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इरेगुलर फोल्ड। देखो, ये स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा पोर्शन है उसके अंदर ऐसे इरेगुलर फोल्ड बनते हैं, और ये जो फोल्ड है उसको बोलते हैं रुगे। रिमेंबर, इन द स्टमक the mucosa layer forms one irregular fold, and this fold is called rugae. Whereas in the small intestine, mucosa forms villi. Villi are small finger-like projections. Okay? तो स्टमक के अंदर ये जो पार्ट है, इरेगुलर फोल्ड्स, जो हमको विली जैसा ही लग रहा है, पर ये है रुगे, इसको बोलते हैं रुगे। और इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कोई पार्ट बनता है जो फोल्डेड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पार्ट है, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको बोलते हैं विली। दैट स्ट्रक्चर इज विली, ओके। वो ब्लड कैपिलरीज से पूरा भरा होता है, लाइक दिस। देखो, ये हो गया विली। विलस इज द सिंगुलर, विली इज द प्लूरल वर्ड। फिर माइक्रोविली। माइक्रोविली क्या है? इसके अंदर देखो, ये सब, ये ब्रश बॉर्डर लाइक आपको दिख रहा है। विली के अंदर ऐसी फोल्डिंग, ये पूरा एक फोल्डिंग हो गया। देखो, ये फोल्डिंग ऐसे, इस फोल्डिंग के अंदर ऐसे इनर फोल्ड्स। दिस इनर फोल्ड्स आर कॉल्ड माइक्रोविली। ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं विली। स्टमक के अंदर ये जो सेल है ना, और ये रीजन, ये म्यूकस बनाता है। रिमेंबर, गॉबलेट सेल विल बी फॉर्मिंग द म्यूकस रीजन। स्टमक के अंदर गॉबलेट सेल म्यूकस बनाता है, ओके। हियर इट विल बी फॉर्मिंग म्यूकस। म्यूकस क्यों?
वो एक लुब्रिकेटिंग सरफेस प्रोड्यूस करेगा ताकि जो एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, वो एसिड से स्टमक का वॉल जो है वो पूरा डैमेज ना हो जाए। तो उस एसिड की इफेक्ट से बचाने के लिए ये गोबलेट सेल्स इस यहाँ पे म्यूकस फॉर्म करते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड म्यूकोसल एपिथेलियम। ओके, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है जो स्टमक को एसिड अटैक से बचाता है। स्टमक के अंदर डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस होता है और उस एसिड की वजह से स्टमक का वॉल जो है डिग्रेड ना हो जाए। फॉर दैट, टू प्रिवेंट दैट थिंग, दिस गोबलेट सेल्स विल बी सिक्रेटिंग म्यूकस। और भी कुछ सेल्स होते हैं स्टमक के अंदर, मैं आपको डाइजेशन में बताऊंगा। पेप्टिक सेल, चीफ सेल जो है वो, पेराइटल सेल्स जो है ये भी। ओके, अभी फिलहाल इसकी यहाँ पे हमने जिक्र किया, तो गोबलेट सेल का ये फंक्शन होता है। इंटेस्टाइन के अंदर ये विली पाई जाती है, इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, म्यूकोसल लेयर में। विली के अंदर जो स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोविली, और जो ये गैप होता है इस गैप को बोलते हैं। द म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स सम क्रिप्स, गैप लाइक स्ट्रक्चर। दिस क्रिप्स आर कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लीबरकून। ओके, दिस विल बी बिटवीन द बेसिस ऑफ विली। तो ये यहाँ पे एक विली खत्म होती है, ये दूसरी विली स्टार्ट होती है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला गैप के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकून। पूरा स्ट्रक्चर एक बार आज दिमाग में पूरा बैठा देना। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्रिप्स बोलते हैं इसको, क्रिप्स ऑफ लीबरकून। ये विली, और विली के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है उसको माइक्रोविली। The borders of villi have a brush-like appearance as the cells lining the villi produce several microscopic projection। तो हमने आपको बताया अभी, तो इसको बोलते हैं माइक्रोविली। ओके, इसका फंक्शन क्या है माइक्रोविली और विली का? ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस जो है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा। So to increase this surface area, absorptive surface area of small intestine, this type of structure are present there. Okay, and this villi have a network of capillaries। अब देखो ये विली के अंदर बहुत सारे कैपिलरीज, स्टमक के अंदर ये रूगे पोर्शन होता है ऐसा ही जैसे ये विली का है। इनफोल्डिंग ऑफ स्टमक, there we are calling it rugae। here this villi is having blood capillaries, पूरा ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ है। ब्लड कैपिलरीज भी होंगे इसके अंदर। और ये बीच वाला जो पार्ट है, देखो ये ऑरेंज, ये येलो कलर का जो पार्ट है नीचे से आ रहा है, ये वाला, ये टिश्यूज है। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड लैक्टियल। तो ये जो येलो कलर का जो यहाँ पे ये लाइनिंग दिखाया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये है लिम्फ वेसल। तो लिम्फेटिक वेसल का जो ये ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे विली के अंदर जो एक्सटेंड होता है, जो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ले जाता है और फिर सिस्टम से बाहर भेज देता है। तो दिस lymphatic vessel will also be connected here, and this part of lymphatic vessel which is inside the villi is called lacteal। next is टिश्यू का जो ये लेंथ है, थिकनेस है, ओके, वो एलिमेंट्री कैनाल में फंक्शन के हिसाब से बढ़ेगा या फिर कम होगा। दिस लेंथ विल बी डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो इंटेस्टाइन है तो ये ज्यादा थिक होगा, कोई और पार्ट है तो वहां पे थिन होगा। आई taught you about digestive system, then this type of biomacromolecules which are need to be digested, then the alimentary canal path। The alimentary canal is also called GIT, that means gastrointestinal tract। हमने टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, थिकोडोंट क्या है, टाइफाइडोंट, डेंटल फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। फिर टंग जो है उसको ये जॉ बोन में जो कनेक्ट करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड, दैट मसल इज कॉल्ड फ्रेनुलम। ओके, फिर ये पेपाइले है। फिर ये स्टमक में कुछ, ये जो पार्ट है ये वाला, ये फंडस है, ये ऊपर का ये जो पार्ट है ये फंडस है। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको कार्डिया या फिर कार्डियक बोलते हैं। और इसमें ये वाला पोर्शन दिया है लेबलिंग में, इस इमेज में, बट दिस इज
This is the cardiac portion, and this bulged part of the stomach is called body. Okay, and this part is called pylorus. ओके, सो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा. सीकम क्या है, कॉलन क्या है, रेक्टम क्या है, ये सब आपको शायद पता लग गया अभी. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. देखो ये कुछ लेयर्स है. अगर इंटेस्टाइन को हम ऐसे ऐसे देखें, तो इंटेस्टाइन को अगर ऐसे देखें हम, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन. सबसे ये बीच बीच का जो पोर्शन है वो खाली रीजन है, ल्यूमेन बोलते हैं उसको. तो ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं म्यूकोसा. सबसे लास्ट में जो पार्ट, ये ल्यूमेन से सबसे जो फार पार्ट है, the farthest portion from the lumen of the intestine, that will be considered as serosa. ओके, तो अगर हमें सर्कल के ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखें इंटेस्टाइन को, तो serosa will be the outermost portion and innermost portion will be mucosa. Okay, and you can find mesothelium cells होते हैं, इनफोल्डिंग्स, that is called rugae. एंड इंटेस्टाइन के अंदर जो ये प्रोजेक्शन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, उसको विली बोलते हैं. सिंगुलर में विलस है, प्लूरल में विली है. विली के अंदर जो फाइन प्रोजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोविली. और ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड लैक्टियल. ओके, और बीच में ये जो गैप है, ये पूरा ये खड्डा जैसा, ये पिट, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स. लिबरकून साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोला जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून. ओके, और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून के नीचे, यहाँ पे इस फिगर में नहीं दिया है, बट बिलो द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, इनसाइड द डिओडिनम, डिओडिनम के पास ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून है, उसके नीचे एक ग्लैंड होती है. दैट ग्लैंड इज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड. ब्रूनर्स ग्लैंड. ठीक है, तो इंटेस्टाइन में डिओडिनम पोर्शन में क्रिप्स ऑफ लिबर कोन के नीचे ब्रूनर्स ग्लैंड होती है. दिस ग्लैंड विल सिक्रेट म्यूकस. ओके, द फंक्शन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड इज टू सिक्रेट म्यूकस इन द इंटेस्टाइनल पोर्शन. ओके, इसलिए उस एरिया का नाम रखा है म्यूकोसा. इज इट क्लियर? तो ये जो थिकनेस है वो वेरी करेगा इंटेस्टाइन के अलग अलग पोर्शन में.